Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Understanding Our Criminal Justice System, and under this chapter we are doing the role of the public prosecutor. As we have discussed in the previous class also, that whenever there is any kind of violation of law, that violation of law is against the state. Just like in case of Santi and Mr. and Mrs. Sinde, the victim were Mr. and Mrs. Sinde, but here the case of the victim will be the lawyer who is there to fight the case of the victim is called the public prosecutor, because he is fighting the case in behalf of the state, है ना. So whenever there is any kind of violation of law, it is against the state. So the state is there who fights the case. Okay, so they are the lawyer who is there to represent the victim, who is there to plead for the victim, is called the public prosecutor. And this public prosecutor represent the interest of the state. And first of all, the matter goes to the police. The police conduct his investigation and file the charge sheet in the court, and now comes the role of the public prosecutor. Okay, and he has no role to play in the investigation. Investigation is done by the police only. The lawyer, the public prosecutor, has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state, है ना. जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट के बिहाफ में काम करता है. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इट इज़ हिज और हर ड्यूटी टू एक्ट impartially and present the full and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to take decisions, है ना. जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, जज का डिसीजन होगा, in order to take that decision, the judge need evidence, the judge need witnesses, the judge need material facts. So all these are provided by the public prosecutor. Okay, and he does his duty impartially. So this is the role of the public prosecutor, and now we see the role of the judge. What is the role of the judge? So in a court, the judge is just like an umpire. Umpire होते हैं ना, जो एक किसी भी गेम में होते हैं, जो कि डिसीजन लेते हैं, है ना. Players are there to play the game and umpire is there to take decisions. So the judge is just like an umpire in a game, and he conducts the trial impartially and in an open court. These are very important, that the judge must be impartial. Impartial means it should not do any kind of partiality with any of the side, है ना. And then the next thing is that it is done in the trial is done in an open court. Open court means the court is open for all. Anyone can get entry by permission. Anyone can get entry in the court. So it is open court. The judge hears all the witnesses and any other evidence whichever is presented by the public prosecutor and the defense lawyer, and the judge decide whether the accused person is guilty or innocent. And this decision is taken by the judge on the basis of evidences which are presented by the defense lawyer and the prosecution lawyer, and the witnesses, the statement of the witnesses, and whatever is the judgment of the judge, that is in accordance with the law, है ना. लॉ जो है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लॉ,
that judgment is taken by the judge. And if suppose the accused is convicted, कि convicted हो गया, यानी कि जो भी चार्जेस उस पर लगे थे, पुलिस ने जो चार्जशीट में चार्ज उस पर लगाया था वो प्रूफ हो गया, मतलब ही इज कन्विक्टेड. सो इन दैट सिचुएशन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस. कितने दिनों की सजा उसे हुई, अगर वो कन्विक्टेड है तो उसको क्या पनिशमेंट मिल रहा है उस क्राइम के लिए. ठीक है. एंड देन द जज मे ऑल्सो सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन, है ना. जैसा पनिशमेंट जो लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसा क्राइम है उसके अकॉर्डिंगली लॉ में क्या पनिशमेंट है तो वही पनिशमेंट जज जो है वो देते हैं. वो अपने मन से नहीं दे सकते, है ना. तो या तो वो उसको जेल भेज देंगे या फिर उस पर फाइन लगाएंगे, या फिर दोनों, जेल भी जाना है और फाइन भी देना है. जो भी उसने जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ होता है. ओके. एंड सो वी हैव सीन द रोल ऑफ ऑल द की प्लेयर्स. इसमें अगर हम देखें तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अगर वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है, तो जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए प्लीड करते हैं इन फ्रंट ऑफ द जज हु इज हु ऑन हुम द चार्जेस आर मेड बाय द पुलिस इन द चार्ज शीट, है ना. तो जैसे कि हम अगर कमला के केस में देखें, कमला नॉट शांति के केस में देखें, तो जो कमला राय थी, सी वॉज द डिफेंस लॉयर, है ना. तो अब हम लोग देखेंगे एक डिफरेंट टर्म आया है हमारे सामने, एंड दैट इज फेयर ट्रायल. व्हाट इज फेयर ट्रायल? Okay, so what we find that whatever happened in case of Shanti, in the way in which her trial was conducted, that is called fair trial. Now we just imagine a situation in which the judge decides to try Shanti's case in a different manner. Okay, and what is the manner? There may be such situation in which we find that if suppose the court did not give a copy of the charge sheet and a statement of witnesses to Shanti, as we have seen, the court has provided a copy of charge sheet to Shanti and the statement of witnesses to Shanti, है ना. ऐसा भी हो सकता था कि कोर्ट उसको नहीं प्रोवाइड करती. ऐसा भी हो सकता था कि जो ट्रायल है वो किसी सीक्रेट लोकेशन पे होता, है ना. अभी हमने कहा ना ओपन कोर्ट ना हो के किसी सीक्रेट लोकेशन में होता, जहाँ पर न तो शांति होती न सुशील होता, मतलब जिसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है वो वहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो. ऐसा भी हो सकता था, है ना, जहाँ पर शांति और सुशील प्रेजेंट ही नहीं है और उनके अगेंस्ट केस चल रहा है, शांति के अगेंस्ट. शांति का कोई रिलेटिव भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है क्योंकि लोकेशन सीक्रेट है ना. ऐसा भी हो सकता है. अगर ऐसा हो कि शांति का शांति को कोई लॉयर मिले ही नहीं, है ना, और या फिर शांति का जो लॉयर है उसको टाइम नहीं दिया जाए प्रॉपर, ताकि वो विटनेस से क्वेश्चन पूछ सके, है ना. जैसे कि हमने देखा मिसेस सिंधे जो थी उनसे जो डिफेंस लॉयर था उन्होंने पूरा सवाल किया, बट ऐसा भी हो सकता था कि डिफेंस लॉयर को उतना टाइम ना दिया जाए, है ना. दैट कैन ऑल्सो हैपन एंड इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शांति वाज गिल्टी. ऐसा भी हो सकता है. सो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम क्या कहेंगे, ऐसे ट्रायल को हम अनफेयर ट्रायल कहेंगे. So in order to understand what is fair trial, you have to understand what is unfair trial. क्या देखा हमने अनफेयर ट्रायल के अंदर क्या हो रहा है, चार्जशीट की कॉपी और विटनेसेस के स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी जा रही है जिस पर्सन पर चार्ज लगे हैं उसको, है ना. जो ट्रायल हो रहा है वो सीक्रेट लोकेशन पर हो रहा है और
जिसके अगेंस्ट ये ट्रायल हो रहा है, जिसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं, वो या उसका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है, बिकॉज द लोकेशन इज सीक्रेट, है ना। जिस पर्सन पे चार्ज लगा है, जो अक्यूज्ड है, जिसको हम कहेंगे अक्यूज्ड, जिस पे एक्यूजेशन लगा है, उसके एडवोकेट को टाइम नहीं दिया जा रहा है कि विटनेस से वो पूरी अच्छी तरीके से पूछताछ कर सके, और ये पहले ही डिसाइड किया जा चुका है कि शांति गिल्टी है ना। तो ऐसे ट्रायल को हम अनफेयर कहेंगे। लेकिन जिस ट्रायल की हमने अभी बात की, जो हुआ शांति के साथ, दैट वाज फेयर ट्रायल, है ना। किसी भी ट्रायल को फेयर होने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 जो है, दैट आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू लाइफ, and this article 21 says that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. Reasonable and just legal प्रोसीजर, है ना। राइट टू लाइफ हमें मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, राइट टू लाइफ दिया है, राइट टू लिबर्टी दिया है। लेकिन ये जो हमारे राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी, ये स्टेट हमसे ले सकती है, बट नॉट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। द स्टेट कैन टेक अवे दीज राइट्स बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर, है ना। सो दिस इज फेयर ट्रायल। जो हम कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल जब होता है तो उसके अंदर रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, और जब अनफेयर ट्रायल होता है तो उसमें रीजनेबल और जस्ट लीगल प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो एक फेयर ट्रायल ये आंसर करता है कि आर्टिकल 21 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 21 के हिसाब से हमारा काम हो रहा है। इट मीन्स द ट्रायल इज फेयर, है ना। सो अब हम देखेंगे कि शांति का जो मैटर था उसमें किस तरह से कौन कौन से एलिमेंट फेयर ट्रायल का हमें नजर आता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट शांति वाज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंसेस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट है, है ना। जो प्रोसिक्यूटर थे, जो उन पे चार्ज लगा रहे थे, उनका जो भी एविडेंस था, विटनेस जो जिसको उन्होंने विटनेस बनाया था, उसका स्टेटमेंट, जो चार्जशीट पुलिस ने फाइल की थी कोर्ट में अगेंस्ट शांति, उसकी कॉपी, सब कुछ शांति को प्रोवाइड की गई। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। नाउ वी सी दैट शांति वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, है ना, एंड दिस थेफ्ट इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। सो शी हैज डन अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द पुलिस। शी वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, है ना। So the trial was held in an open court. ओपन कोर्ट मतलब पब्लिक व्यू में, वहाँ पर कोई भी आ सकता है। Anyone can see the trial with permission only, but anyone can see. उसका ब्रदर सुशील, he was also attending the court hearings, है ना, and Shanti was also present there. So this is also very important that the accused must be present there when the trial is going on against the accused, है ना। और उसके जो भी relatives हैं, they should also be there. And शांति को के डिफेंस के लिए एक लॉयर भी दिया गया उसको, एंड शांति का जो लॉयर थे उसको पूरा का पूरा टाइम भी दिया गया, अपॉर्चुनिटी दिया गया, ताकि वो सारे जो प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो विटनेस ला रहे थे उनको वो क्रॉस एग्जामिन कर सके, है ना। सो एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस ऑल्सो। जैसे कि हमने देखा था ना, जो सुशील का एम्प्लॉयर था उसको उन्होंने एज अ विटनेस बुलाया था। तो दिस वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि जो डिफेंस लॉयर है उसको भी ये राइट है कि वो विटनेसेस को बुला सकता है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फेयर ट्रायल, है ना। एंड वी सी कि पुलिस ने तो यही फाइल किया था चार्जशीट में कि शांति हैज़ स्टोलन द गोल्ड चेन ऑफ मिसेस सिंधु। बट जज ने क्या किया, जज ने जो उनके सामने जो
विटनेसेस आए, उसके बेसिस पे जज ने यही डिसाइड किया कि सी इज इनोसेंट, सी हैज़ नॉट स्टोलन द गोल्ड चेन ऑफ मिसेस सिंधे, है ना. सो इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी. प्रोसिक्यूशन जो है, जो प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये प्रूव करे कि शांति जो है वो गिल्ट थी, शांति ने ही क्राइम किया है ना. यही प्रोसिक्यूशन का काम होता है. बट यहाँ पर प्रोसिक्यूशन इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि शांति ने ही क्राइम किया, मतलब पुलिस ने जो चार्ज लगाया था वो गलत प्रूफ हो, है ना. सो वी सी कि एक और चीज़ जो फेयर ट्रायल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जज जो भी डिसीजन ले रहा है, whatever decision is going to be taken by the judge, that is on the basis of the evidence before the court, on the basis of the statement given by the witnesses. The judge cannot jump to the conclusion that Shanti was the thief or Shanti was not a thief, है ना. जज को अपना पर्सनल व्यू से कोई मतलब नहीं कि वो सोचे कि वो पुअर थी तो उसने चोरी किया होगा क्योंकि उसको पैसे की कमी थी. जज को अपना पर्सनल व्यू नहीं रखना है, उसे जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट विटनेसेस के, उसके बेसिस पे उसको जजमेंट करना है ना. तो इसी को हम कहते हैं क्या, इम्पार्शियल होना. आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, आपको अपनी सोच से कुछ नहीं काम करना है, बल्कि जो एविडेंस और विटनेस है उसके बेसिस पे काम करना. सो यू शुड बी इम्पार्शियल, है ना, विदाउट पार्शियलिटी. एंड जो एविडेंस आए उससे ये पता चलता है कि सम यंग मैन एंड some young men were the guilty. They had actually stolen the chain of Mrs. Sindhe, है ना. So Shanti has not stolen the gold chain, है ना. So justice was done to Shanti because she was given a fair trial. If Shanti was not given a fair trial, then in that case justice may not be done with Shanti, है ना. तो फेयर ट्रायल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बाई फॉलोइंग रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर we can deliver justice. Justice will prevail only when there is fair trial. If the trial is unfair, then justice will not prevail in the country. So it is very important for the existence of justice that the trial should be fair. And our constitution says very clearly, not only constitution but the laws made by the parliament also states that all the persons who are involved in any case, like the police, the public prosecutor, the defense lawyer, the judge, all the four should carry out their roles in a proper manner, है ना. And they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused. If anyone is accused of any crime, he or she must be given fair trial. There should not be any concern to the gender, to the caste, class, religious और ideological background of that person, है ना. जो भी accused है उसको fair trial मिलना चाहिए. And this is rule of law which says that everyone is equal before the law. No one is above the law. No, the law will not discriminate among the people on the basis of their caste, class, gender, religious or ideological backgrounds, है ना. So law जो है वो सबके लिए एक बराबर है, और तभी हम फेयर ट्रायल की गारंटी दे सकते हैं लोगों को, और जब फेयर ट्रायल होगा तभी जस्टिस होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. वी हैव completed the chapter and now we have to do some extra questions from this chapter. Okay, so in this chapter you will see that the questions which are given at the end of the chapter is
It's a very different type of question which is completely understanding based. So I will discuss that question also, and some extra questions also. So in the next class we will discuss all these.